Good morning students. Students, today we are going to start new chapter tenses. It's a very important topic and you have to learn it. You have to watch this video carefully. Okay, it is very important topic for you. Okay student, first tenses. So what is the tenses? A tenses means a form of verbs which tells us, a form of verbs which tell us something is happened in past, present और future. ओके, अ फॉर्म ऑफ वर्ब की फॉर्म हमें बताती है कि कुछ हुआ है पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में. ये हमें किससे पता चलता है? वर्ब से. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली. शी सिंग्स अ सॉन्ग. शी सिंग्स अ सॉन्ग. ओके, दे प्ले हॉकी. दे प्ले हॉकी. इन विच you can see student, sings is a singular verb and play is a plural verb. Okay, because there is plural subject, so we will write here plural verb, and here is singular subject, so in this case we will write here singular verb. Okay, she sings a song and they play hockey. Okay, here second read, they swam in the river. They swam in the river. She played cricket. Okay, this is the second form of the verb. Okay student, this is the second form of the verb. They swam in the river. She played cricket. Okay, I shall go. I shall go to Delhi. I shall go to Delhi and he will meet. इसमें verb क्या है? Will meet tomorrow. Okay student, so see in a group A, इस A ग्रुप में the verb sings and play. ये verb sings and play क्या है? ये verb है. कौन सी फॉर्म है? verb की फर्स्ट फॉर्म है. The verb sings and play tell us, क्या बताती है? That the action is taking place in the present time. जो किस में हो रहा है एक्शन? प्रेजेंट टाइम में. नॉट पास्ट. प्रेजेंट मीन्स आज के टाइम में हो रहा है. दिस वर्ब्स बिलोंग टू द सिंपल प्रेजेंट. ये वर्ब्स जो यहाँ पे बताई गई है सिंग्स और प्ले, किससे बिलोंग कर रही है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से. किससे बिलोंग कर रही है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, इन ग्रुप बी, बी ग्रुप में क्या है? द वर्ब्स स्वाम एंड प्लेड. ये स्वाम और प्लेड ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. क्या है ये? वर्ब की second form. So the verb swam and played tell us that the action has already taken place in the past. मतलब कि already taken हो चुका है, taken place हो चुका है, मतलब कि हो चुका है. किस में हो चुका है? पास्ट में. और these verb belong to the simple past tense. किससे बिलोंग करती है ये? सिंपल पास्ट टेंस से. इन वर्ब को देख के हमें पता चलता है कि सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करती है. ओके स्टूडेंट, सो हियर इन ग्रुप सी, सी में द वर्ब शैल गो. यहाँ पे कौन सी वर्ब? शैल गो. ओके, शैल गो. एंड विल मीट और विल मीट टेल अस, क्या बताती है? दैट द एक्शन विल हैपन. दैट द एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम. इट मीन्स ये अभी तक हुआ नहीं है, होगा. कब होगा? फ्यूचर टाइम में. होने वाला है या होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? फ्यूचर. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड. प्रेजेंट टाइम जो आज है, पास्ट मीन्स जो बीत चुका है आपका, और फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है. ओके, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेज: present, past and future. Okay student, there are three types of tenses: present, past and future. So first read and write carefully. Okay student, there are how many types of tenses are? There are three types of tenses: present, past and future. present, past and future. Okay student, present, past and future.
every tense has 4 forms. Every tense has 4 forms like present simple, like सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट perfect and present perfect continuous. Okay student, so here see each tense has 4 forms. कौन सी? I wrote here simple present, okay, present continuous tense and present perfect and present perfect continuous. Same this type of forms we will write here. Past, simple past, then past continuous, past perfect and past perfect continuous. सेम ये आएगी यहीं पे भी, इसके भी 4 फॉर्म्स है, सिंपल, पास्ट, ओके, देन सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस, देन पास्ट परफेक्ट, ओके, देन पास्ट परफेक्ट continuous. Okay student, same this will write here simple future, simple future. So same you have to write here simple future, then future continuous, future perfect and future perfect continuous. Same you have to write here also, but today we will learn only simple present, simple past and simple future. Okay student, today we will learn only simple present, simple past and simple future. Okay, so let's see structure of simple future, simple present. इसका structure देखो आप. Okay student, structure इसका क्या होगा? Subject plus V1. Okay, verb has already 3 forms, first form, second form and third form. So हमें V1 मतलब कि verb की first form यूज़ करनी है. तो subject plus V1 plus object और other means इसमें phrase भी या तो object आता है या phrase या adverb कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसको other लिखा है. ठीक है, यहाँ पे भी इसका structure क्या है? structure इसका क्या है? subject plus V2 plus object plus other. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल. ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है तो शैल आता है, विल आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? V1. यहाँ पे V2 लिखी, इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे V1 लिखी, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और other. Okay student, so how can you identify? So subject plus V1 अगर subject किसी भी sentence में आता है subject plus V1 तो it means there is a simple present tense. Okay, like example, she writes a लेटर. शी राइट्स अ लेटर. यहाँ पे देखो ये V1 है, ओके, बट इसे इट इज सिंगुलर. ओके, इट इज सिंगुलर बिकॉज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट वी एड एस और ई एस. ओके, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट इन वर्ब वी एड
एस और ई एस टू मेक इट सिंगुलर. ओके, सो शी राइट्स अ लेटर. यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है. ओके, एंड ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. ओके स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सब्जेक्ट प्लस V1 है, इट मीन्स ये कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया. ओके, सब्जेक्ट प्लस V1 इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट टेंस सेंटेंस. ओके, यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट प्लस V2 का है मैंने, तो शी wrote a letter. She wrote a letter. Here you can check subject V2 plus object. Okay student, subject V2 plus object. It means this sentence indicate that means this is the past simple tense sentence. Okay, ये past simple का सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद इसमें V2 आई है. इट मीन्स दिस इज द पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस. ओके, हियर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे स्टूडेंट आई और वी के साथ शैल का यूज होता है. फ्यूचर में आई और वी के साथ किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है. और अदर सारे सब्जेक्ट के साथ ओनली विल का यूज होता है. अदर सब्जेक्ट मीन्स जो भी सिंगुलर है या प्लूरल है, अदर सब्जेक्ट सबके साथ विल का यूज होगा. किसका यूज होगा, विल का यूज होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. आई और वी के साथ ओनली हम शैल का यूज करेंगे और अदर जो भी सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग रह गए हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का. आई होप यू अंडरस्टूड. सो लेट्स सी. शी विल, यहाँ पे विल लेंगे क्योंकि यहाँ पे आई और वी तो है नहीं, तो ये अदर सब्जेक्ट हो गया. शी विल राइट, यहाँ पे क्या है इसका स्ट्रक्चर V1, तो हमें यहाँ पे V1 यूज करनी है. शी विल राइट अ लेटर. ओके स्टूडेंट, सो शी इज सब्जेक्ट, विल राइट, यहाँ पे विल राइट दोनों इसमें वर्ब है, तो ये क्या है, वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, सो यू कैन चेक सब्जेक्ट वर्ब. ओके, विल लिखा हमने, देन V1 आ गया इसमें, देन ऑब्जेक्ट आ गया. इट मीन्स दिस सेंटेंस, ओके, दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस किसका हो गया, ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हो गया. इससे आप पहचान सकते हो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है. यहाँ से फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल पास्ट का है या सिंपल फ्यूचर का है. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, अगर इसी को आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो, ये कौन सेंटेंस हो, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए. अगर आप इसी को इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, पहले तो अपन हेल्पिंग वर्ब सीखते हैं. तो बेटा प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज. प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज. यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है. क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब. ओके, लाइक इफ यू वांट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन इन दिस केस यू हैव टू पुट हियर. यहाँ पे आप क्या लिखनी है, सब्जेक्ट पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है. और मैंने क्या बताया इसमें कौन सी है, इसके प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू और डज. हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डज. ये डज तो किसके साथ में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और डू किसके साथ में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. सो सपोज सी बाय द एग्जाम्पल लाइक शी है यहाँ पे, तो शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो इसको कैसे करेंगे हम, डज शी. अब यहाँ पे हमने डज पहले ले लिया, ई एस पहले इसमें लगा दिया हेल्पिंग वर्ब में, तो हम यहाँ पे इसमें ई एस नहीं लगाएंगे वर्ब में, मेन वर्ब में. डज शी राइट अ लेटर. ओके स्टूडेंट, डज शी राइट अ लेटर, क्या वह लेटर लिखती है, तो इट मीन्स इसका आंसर यस और नो में होता है जो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं. इट मीन्स यस, आप यस और नो में इसका आंसर दे सकते हो. डज शी राइट अ लेटर, इट मीन्स दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट, कौन सेंटेंस बनाइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब इसी का ही आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, इसमें
इसी में नेगेटिव बनाओगे तो शी डज नॉट, यहाँ पे डज के बाद में वही हेल्पिंग वर्ब के बाद में, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है डज, तो यहाँ पे ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। देन डज, शी डज नॉट राइट अ लेटर, बिकॉज अदर टेंसेज में तो क्या होता है सबकी हेल्पिंग वर्ब साथ में होती है, बट इन प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट पास्ट में इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब साथ में है, तो आप इनसे आप इनका इंटरोगेटिव बना सकते हो, बट इसमें प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल की डू और डज होती है, और सिंपल पास्ट की होती है डिड ओनली, क्योंकि इसकी डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, तो यहाँ पे डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, व्हेन यू वांट टू फॉर्म एनी सेंटेंस, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता, अगर यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता, वी राइट लेटर्स, हम लेटर्स लिख रहे हैं, तो इसमें देखो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब हो गया, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट की वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या बताया मैंने, डू। तो यहाँ पे अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, डू वी राइट लेटर्स, डू वी राइट लेटर्स, क्या हम लेटर्स लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो आप ये प्लूरल वर्ब हो गई, वैसे भी यहाँ पे ये क्या है प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एस और ई एस ऐड नहीं है, इट मीन्स यू कैन से दिस इज प्लूरल वर्ब, दिस इज प्लूरल वर्ब। एंड हियर डू, यहाँ पे डू हमने इसमें सब्जेक्ट से पहले हमने डू लगा दिया, प्लूरल है ना यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, डू लगा दिया, तो डू वी राइट लेटर्स, इट मीन्स दिस इज इंटरोगेटिव। ओके, सेम यहाँ पे भी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है ओनली डिड, ये सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें डिड ही आएगा। ओके, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, इसकी डिड फॉर्म यूज़ करेंगे। सो सपोज शी रोट, आप और भी लिख सकते हो, शी एट हर लंच, उसने अपना खाना खाया था, इट मीन्स देखो यहाँ पे एट सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट हो गया। इसमें अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या क्या कि सब में इसमें डिड की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डिड शी, यहाँ पर एट है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, पर यहाँ पे हम इसकी सेकेंड फॉर्म लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ईट। सो डिड शी ईट हर लंच, क्या उसने अपना खाना खाया था। ओके, अगर इसी का आप नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, डिड शी डिड, तो यहाँ पे डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, डिड नॉट ईट, क्योंकि डिड हमने वर्ब इसमें यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे एक ही बार आप यूज़ करोगे सेकंड फॉर्म, या तो हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो आप इसमें वर्ब की जो मेन वर्ब, यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसी में आप सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे वर्ब की। ओके, तो शी डिड नॉट ईट हर लंच, तो दिस इज हाउ यू कैन मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, that's how you can make interrogative sentence and negative sentence in the past, simple past. Okay student, so same, she will write a letter, यहाँ पे तो देखो आपको यहाँ पे आपको helping verb मिल जाएगी। if you want to make it interrogative sentence, how will you make, will she राइट यहाँ पे इसके वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होती है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, तो विल शी राइट अ लेटर, ओके स्टूडेंट। सो हियर दिस इज हाउ you can make a interrogative sentence. If you want to make it negative sentence, then how will you make,
शी विल। जब भी आप नॉट लगाते हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट लगता है व्हेन यू फॉर्म एनी नेगेटिव सेंटेंस। तो शी विल नॉट राइट a letter. So that's how you can make negative sentence also. So student, I hope you have understood how to make negative and interrogative sentence also from the simple present। हम सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं आपने सीखा अभी जस्ट। एंड यू हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर, ओके। एंड वन थिंग आई टोल्ड यू, सिंपल प्रेजेंट आपके किस किस के बारे में बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। जो भी आप लिखते हो ना इज आर एम इसमें आता है, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग होता है। लाइक शी इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है ये? इसको कौन सा टेंस बोलोगे आप? इसको आप बोलोगे सिंपल प्रेजेंट, ओके। वाई? बिकॉज हियर यू कैन चेक सब्जेक्ट आफ्टर दिस इज V1, ये V1 है यहाँ पे, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम, तो यहाँ पे क्या है? ये V1 है। और सब्जेक्ट के बाद में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं इस तरह के सेंटेंस, जैसे पोजीशन हो गया, हैज़ हैव वाले हो गए, जैसे शी हैज़ अ कार, आई मीन दे हैव अ कार। तो इस तरह के सेंटेंस किस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। स्टेट के बारे में बताएंगे आपके कि वो किस अवस्था में है। और ये प्रेजेंट सिंपल आपके यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलोगे आप? जिसको जो ऑलरेडी यूनिवर्सल है, मतलब कि जिसको सपोज सी द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस कौन सा? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के सेंटेंस जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं, ओके स्टूडेंट। और आपकी जो हैबिट होती है, इफ़ यू टॉक अबाउट योर हैबिट, देन हैबिट ऑल्सो कम इन अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। हैबिट ऑल्सो रिटर्न या राइट इन अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। लाइक आपकी हैबिट हो तो आप क्या बोलोगे? आई लाइक टू टेक कॉफ़ी या टी इन द मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस ये सेंटेंस बता रहा है आपकी हैबिट के बारे में बता। आई लाइक टू टेक टी इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में मुझे टी लेना पसंद है। इट मीन्स ये आपकी हैबिट है यहाँ पे। और अगर वही पर रूल वही फॉलो होगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो आप क्या लिखोगे? शी लाइक्स, ओके। शी लाइक्स टू टेक कॉफ़ी या टी या कॉफ़ी जो भी है इन द मॉर्निंग आप लिख सकते हो। टू टेक टी, ओके, इन द मॉर्निंग। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो प्रेजेंट सिंपल में हैबिट आती है आपकी, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग ही बताता है। सो इज आर एम वाले सेंटेंस अगर उसके बाद में स्टेट ऑफ बीइंग नाउन की स्टेट बता रहा है तो वो भी आपके प्रेजेंट सिंपल में ही काउंट होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड स्टूडेंट ट्राई टू मेक एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल ऑफ ईच टेंस, ओके। लाइक 10 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट, 10 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट एंड 10 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्यूचर to make practice, okay student. It is very important topic, so please if you watch this video carefully and if you will do practice of this topic, then you will easily understand this topic, okay. Thank you student, have a nice day.